Good morning, class. As I already discussed about 7 chapters, and in the previous class also, we have started discussing chapter 9, and that chapter 9 is globalization. In this chapter, you come across with so many things. Dear students, what is globalization? I think it was made clear to you. Globalization as a concept which fundamentally deals with the flows. You know that these flows can be of various kinds. The ideas moving from one part of the world to another. You all know that capital also shunted between the two or more places. Commodities being traded across the borders, and people moving in search of better livelihoods to different parts of the world. And this was known as worldwide interconnectedness or globalization. This is created and sustained as a consequences of constant flows. डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैश्वीकरण है ये विभिन्न प्रवाहों से संबंधित है और ये प्रवाह जो हैं वो एक देश और दूसरे देश में ना होकर बहुत से देशों में होते हैं. Globalization is a multi-dimensional concept. You all know it very well. It has political, economic, cultural effects. The impact of globalization is usually uneven. Uneven का अर्थ है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है वास्तव में इसके जो असर हैं वो हर जगह अलग अलग तरह के पड़ते हैं. ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर एक सा असर पड़ता है. It affects some societies more than others and some parts and some societies more than others. There are various causes of globalization. कहाँ से आया, क्यों फैल रहा है? तो सबसे पहला जो इसका कॉज है वो है historical base. You all know that although it is spreading nowadays with a very fast speed, but actually it has a strong historical base. आपने सिल्क रूट पढ़ा होगा हिस्ट्री में. सिल्क रूट वो ट्रेड रूट था जहाँ से चाइना और इंडिया के जो शिप्स थे वो यूरोप ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे. तो यानी उस दौर में भी व्यापार था. आपने फाहियान, हर्षवर्धन, ये सब नाम सुने होंगे हिस्ट्री में. ये सब वो लोग थे स्कॉलर्स जो भारत आते थे और भारत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे. लेकिन उस समय लोगों का जो मूवमेंट था, जो आना जाना था, वो आज की तरह बड़े वास्ट स्केल पर बहुत बड़े नंबर में नहीं था. टेक्नोलॉजिकली देयर इज नो डाउट दैट the invention of telegraph, telephone and microchip is more recent time has revolutionized the communication between the actors in the different parts of the world. कि आज जो ग्लोबलाइजेशन की स्पीड है वो कहाँ से आई? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. Interconnected world, people in different parts of the world to recognize these interconnectedness with rest of the वर्ल्ड. आज दुनिया का हर कोना हमारे लिए एक जाना पहचाना कोना है और हम अपने आसपास से ज़्यादा, अपने आस पड़ोस, अपनी सोसाइटी से ज़्यादा हम उनके कल्चर, यूरोपियन कल्चर, उनकी सोसाइटीज़, उनके लाइफस्टाइल, इस सब के बारे में जानते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद द टॉपिक द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी वैश्वीकरण या भौगोलिकरण के क्या हम पर असर पड़ रहे हैं. तो इसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की. डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द डिबेट्स दैट हैज़ बीन जनरेटेड एज a consequences of contemporary process of globalization
relates to its ongoing political impact. How does globalization affect traditional concept of state sovereignty? आप सब जानते हैं कि परंपरागत समय में हम ये मानते हैं कि राज्य जो है वो सर्वोच्च होता है, यानी जो सरकारें होती हैं वो सर्वोच्च होती हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग उनके खुद के हाथ में होती है। एक सॉवरेन स्टेट वो होती है जो अपने लिए खुद निर्णय ले सके। There are at least three aspects which we need to consider when answering the question. At the most simple level, globalization is an erosion of state capacity. Erosion of state capacity ये इसका पहला कारण बन रहा है, पहला इफेक्ट बन रहा है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि राज्य की क्षमताओं में कमी आ रही है। That is the ability of government to do what they do all over the world. Second जो इसका ओपिनियन है वो ये कहता है the old welfare state is now giving way to a more minimalist state that performs certain core function such as maintenance of law and order and the security of its citizens. यानी पहला तो यही कहा जा रहा है कि राज्य की क्षमताओं में कमी आ रही है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि पहली सरकारें कि एक्चुअली सरकारों का काम कल्याणकारी सरकारें होना होता था, लेकिन अब सरकारें कल्याणकारी सरकारें ना होकर अपने जो उनके कार्य क्षेत्र हैं उन्हें कमतर करती जा रही हैं, कम से कम करती जा रही हैं। आज सरकार सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम कर रही है। It withdraws from many of its earlier welfare function directed at the economic and social well-being. In place of the welfare state, it is the market that becomes the prime determinant of economic and social priorities. Dear students, आप सब जानते हैं कि सरकार बहुत सारे वेलफेयर फंक्शंस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग रोड्स, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग पार्क्स and so on, making hospitals, schools and so many welfare schemes. But क्या आपने देखा है कि बहुत सी जगह पर जब आप जाते हैं तो आपको टोल टैक्स पे करने पड़ते हैं, और जबकि एक गाड़ी जब खरीदी जाती है तो उसी वक्त उसकी 10 इयर्स के लिए जो रोड टैक्स है वो पे कर दिया जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा कि जब हम गाड़ी खरीद रहे हैं उसी समय हम उसका रोड टैक्स पे कर रहे हैं, तो फिर जब हम अलग अलग सड़कों पर चलते हैं तो हम टोल टैक्स क्यों पे करते हैं? ये टोल टैक्स इसलिए पे किया जाता है क्योंकि कुछ पर्टिकुलर पैच, वो हिस्सा जिस पर हम गाड़ी चला रहे हैं, इट इज़ मेंटेन्ड एंड मेड बाय सम मल्टीनेशनल कंपनी, और जब तक उस कंपनी का वो सारा खर्चा जो उसने उस पर लगाया है, उस सड़क के निर्माण पर, उसकी मेंटेनेंस पर लगाया है, वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमें उसके लिए टोल पे करना पड़ता है, टोल टैक्स। ऐसे ही इंटरस्टेट टोल टैक्स। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी कि व्हेन वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, रोड टैक्स, when we have purchased that vehicle, then what for we are paying the toll tax? अगर कल्याणकारी कामों में सरकार का काम सड़कें बनाना है तो फिर हम टोल टैक्स क्यों पे कर रहे हैं, जबकि हम अपने व्हीकल खरीदते वक्त भी उसका टैक्स पे कर चुके थे? तो इसका अर्थ ये है कि बहुत सारे जो वेलफेयर फंक्शंस हैं गवर्नमेंट उनसे अपने आप को विड्रॉ कर रही है। द एंट्री एंड द इंक्रीज्ड रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड्स टू द रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। यानी अब सरकारों की जो काम करने की कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। बट it doesn't mean that globalization have only negative political impacts. It has some positive political impacts also.
At the same time, globalization doesn't always reduce the state capacity. The primacy of the state continues to be unchallenged basis of political community. ये बात सच है कि किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसकी जो कैपेसिटीज़ हैं वो अनचैलेंज्ड होती हैं. The old jealousies and rivalries between the country have not ceded to the matter of the world politics. The state continued to discharge its essential functions like law and order, national security, and concisely withdrawn the certain domains with which it wishes to. यानी स्टेट जो है हर हाल में इम्पोर्टेंट रहेगा. Indeed, in some respects, state capacity have received a boost as a consequence of globalization. अगर हम इस वैश्वीकरण का प्रभाव देखते हैं तो बहुत हद तक राज्य की क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है. कैसे? With the enhanced technologies available at the disposal of the state collection information about its citizens. With this information, the state is better able to rule, doesn't less able. कि आज इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है इससे सरकार के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा आँखें हो गई हैं और सरकार ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है बजाय के कम. आप सब जानते हैं घरों पर भी आजकल चालान भेजे जाते हैं. कैसे? विद सो मैनी कैमराज मेड बाय द गवर्नमेंट. द स्टेट बिकम मोर पावरफुल देन दे वर अर्लियर एज द आउटकम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी. तो इस तरह से नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से जो सरकारें हैं उनके आँख कान बढ़ गए हैं और वो ज़्यादा अच्छे से रूल कर पाते हैं, स्पाई कर पाते हैं, कंट्री को देख पाते हैं. और आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की देख रहे हैं. द नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव. While everything may not be known about the economic facts of globalization, this particular dimension shape a large part of the content and the direction of contemporary debates surrounding globalization. A part of problem has to do with defining the economic globalization itself. The mention of economic globalization draws our attention immediately to the role of international institutions like the IMF and the World Trade Organization and the role they play in determining economic policies across the world. Yet economic globalization must not be viewed in such a narrow terms. अगर हम आर्थिक वैश्वीकरण की बात करते हैं तो ज़्यादातर देशों को लगता है, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जिस तरह से देशों में इंटरफेयर कर रहा है इसे ही आर्थिक वैश्वीकरण कहते हैं. लेकिन वास्तव में वैश्वीकरण को इस छोटे आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए. Yet globalization means economic globalization involves many actors other than these international institutions. A much broader way of understanding of economic globalization requires us to look at the distributions of economic gains. वास्तव में हमें ये देखना है कि इस वैश्वीकरण से किसको कितना फ़ायदा हुआ. Who gets the most from globalization and who gets the less, indeed who loses from it. कि इस वैश्वीकरण से किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, ये जानना ज़रूरी है. What we often called economic globalization usually involve the greater economic flows among the different countries of the world.
शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो कुछ तरह के प्रवाह हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो प्रवाह है वो इकॉनमी यानी धन का है, पैसों का है। सम ऑफ दिस इज वॉलंटरली एंड सम फोर्स्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पावरफुल कंट्रीज। कि ये जो धन का प्रवाह है ये कई बार तो कुछ कंपनीज अपनी मर्जी से करती हैं, और कई बार जो बहुत पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनकी मर्जी से भी करना पड़ता है। As we saw in the example at the beginning of this chapter, this flow or exchange can various forms, that is commodities, capital, people and ideas। कि जो प्रवाह है वो किस किस का है? चीज़ों का, commodities, कैपिटल पूंजी का, पीपल लोगों का, आइडियाज़ विचारों का। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्वॉल्व द ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। ये बात बिल्कुल हद तक ठीक है कि वास्तव में जिस प्रवाह का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है वो हैं चीज़ें, कमोडिटीज़। दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक चीज़ें बहुत तेज़ी से पहुंची हैं। द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द डिफरेंट कंट्रीज ऑन अलाउइंग द इम्पोर्ट ऑफ अदर कंट्रीज हैव बीन रिड्यूस्ड। ये बात सच है कि देशों ने एक दूसरे के यहाँ सामान पर जो इम्पोर्ट लगता था, जो रिस्ट्रिक्शंस लगती थी, उसको रिड्यूस किया है। Similarly, the restriction on movement of capital across the country have also been reduced। यानी दूसरी बात कि पहले पूंजी लगाना दूसरे देशों में मुश्किल था, वो रिस्ट्रिक्शंस थे, वो भी कम हुई है। In operational terms, it means that the investor in rich countries can invest their money in the countries other than their own। वास्तव में इस वैश्वीकरण का अर्थ है कि अगर किसी देश के धन वाले वर्ग किसी दूसरे देशों में पैसा लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग द डेवलप्ड कंट्री, इंक्लूडिंग द डेवलपिंग कंट्री, वेयर दे माइट गेट द बेटर रिटर्न्स। Globalization has also led to the flows of ideas across the national boundaries। न सिर्फ चीज़ों का आवागमन बढ़ा है, न सिर्फ पूंजी का आवागमन बढ़ा है, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में विचारों का आवागमन भी बढ़ा है। But globalization has not led to the same degree of increase in the movement of people across the world। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जो लोग हैं उनका प्रभाव नहीं है। डेवलप्ड कंट्री हैव केयरफुली गार्डेड देयर बॉर्डर्स with visa policy to ensure that citizens of other country cannot take away the jobs of their own citizens। जो बड़े विकसित देश हैं उन्होंने अपनी वीज़ा नीतियों के द्वारा ये तय किया है कि बहुत अच्छे तरह से अपने बॉर्डर्स को गार्ड किया है कि ज़्यादातर देशों के लोग वहाँ ना पहुँचे और उनकी नौकरियाँ ना खतरे में डालें। In thinking about consequences of globalization, it is necessary to keep in mind that some set of policies do not lead to the same results everywhere। यानी वैश्वीकरण फैला तो है पर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हर जगह एक से नहीं है। While globalization has led to the similar economic policies adopted by the government in different parts of the world, but has generated vastly different outcomes in different parts of the world, it is again crucial to pay attention to specific context rather than make simple generalizations in the connection। Economic globalization has created an intense division of opinion all over the world। Those who are concerned about the social justice,
are worried about the extent of state withdrawal caused by the process of economic globalization. यानी वो लोग जो परंपरावादी हैं वो इस आर्थिक खुलेपन का विरोध करते हैं. They point out that it is likely to benefit only a small section of population while the improvising those who are dependent on the government for jobs and welfare, that is education, health and sanitation. वो मानते हैं कि इस वैश्वीकरण से फ़ायदा हो रहा है लेकिन एक समाज के छोटे से समूह को, लेकिन उन लोगों को जो अपनी हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए सरकार पर निर्भर करते हैं, उनकी क्षमताओं में कमी आ रही है. They have emphasized to need to ensure the institutional safeguards or creating a social safety nets to minimize the negative effect of globalization on those who are economically weak. ऐसे लोगों का मानना है कि वो लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिन्हें इस वैश्वीकरण का नुकसान हो रहा है, उनके लिए सरकार को कुछ नीतियां निर्धारित करनी चाहिए. Many movements all over the world feel that safety nets are insufficient or the unworkable. They have called for a halt to forced economic globalization, for its result would lead to economic ruin for the weaker countries. बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये जो वैश्वीकरण है, आर्थिक वैश्वीकरण है, ये बहुत से देशों के लिए आर्थिक तबाही लाएगा, खासकर जो गरीब देश हैं उन्हें पूरी तरह उनकी संपत्ति को ख़त्म कर देगा. Especially for the poor within these countries, some economists have described the economic globalization as recolonization in the world. और उनका मानना है कि ये जो आर्थिक वैश्वीकरण है, ये दुनिया को दोबारा से उपनिवेश बनाने की, नव उपनिवेशवाद की नीति है. पर कुछ लोग इसके फेवर में भी हैं. The advocates of economic globalization argue that it generates greater economic growth and well-being for large section of population when there is a deregulation. वो मानते हैं कि आज देशों में ज़्यादा पूंजी है, ज़्यादा उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, ज़्यादा लोगों को जॉब दी जा सकती हैं. Greater trade among the country allow each economy to do what it does best. This would benefit the whole world. They also argue that the economic globalization is inevitable and it is not wise to resist the march of the history. उनका मानना है कि आर्थिक वैश्वीकरण होना चाहिए, इसी में जो देश अपना जितना फ़ायदा कर सकता है वो करेगा. More moderate supporters of globalization say that globalization provides a challenge that can be responded to intelligently without accepting is uncritically. बहुत से लोगों का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन को बिना किसी क्रिटिकल समस्या के इसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और अपने देश को आर्थिक उत्थान की तरफ ले जाना चाहिए. इसी से जो डिफरेंट लोग हैं, पीपल हैं, दे विल गेट बेनिफिट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. वैश्वीकरण के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को दोबारा प्रॉपरली सुनें, रिलेटेड क्वेश्चंस करें. साथ में मैंने आपको नोट्स दिए हैं, की पॉइंट्स दिए हैं, उन की पॉइंट्स को ध्यान से नोट डाउन कर लें. एज वेल एज आई विल गिव यू 2 questions in the assignment. Please do them carefully. That will help you out. Thank you very much.